Okay, assalamualaikum students. Let's start today's class. Uh, we will continue the same chapter. We were doing static electricity, so we will continue with the static electricity chapter. The topic that we are going to study today, that is your electric field. As a previous topic that we have studied, that was your electrostatic induction. I've told you that that topic is very important, so you have to go through that topic a number of times. So let's start our electric field. Electric field is closely related to your gravitational field, and it is also closely related to your magnetic field as well. So basically, what is the gravitational field? Around Earth, there is a particular space. There is a space around Earth in which if you place any object, then that object will be attracted toward the Earth. It will fall toward the Earth. But if you place any object outside the gravitational field of the Earth, then that object will not fall to the Earth surface. तो जो ऑब्जेक्ट आप जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में रखते हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो नहीं रखते हैं स्पेस में रखते हैं it will not be attracted to it will not be attracted toward the earth's surface. So that is what that is what gravitational field is. Similarly, when we have charges, whether we have a positive charge or we have a negative charge, these charges have a particular area around them. That particular area around them is called their electric field. So if we place any charge in this electric field, then it will experience a force. The other charge will experience a force. That force can be a force of attraction or it can be a force of repulsion. So that surrounding area around a charge in which another charge can experience a force, that area is called the electric field. So usually whenever we are talking about electric field, so we talk about the force experienced by a unit positive charge. A unit positive charge is basically a charge that has whose charge is 1 coulomb. अगर किसी चार्ज के ऊपर जो है वो 1 coulomb का चार्ज है, then we say that is called a unit charge. और 1 coulomb अगर positive है तो we call it unit positive charge. So usually whenever we are studying and whenever we are discussing electric field, तो electric field को discuss करने के लिए what we do, we basically consider positive charge. So what is an electric field? Electric field is an area around a charge in which any other charge can experience a force. Now this any other charge has to be a positive charge. Any other charge has to be a unit positive this has to be a unit positive charge. तो जो भी आपके पास unit positive charge है, whenever you place that unit positive charge near another charge, so what will happen? That unit positive charge will either experience the force of attraction or it will experience the force of repulsion. So the surrounding area in which you have placed that charge, that surrounding area will be called its electric field. वो जो हमारा एरिया है वो हमारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. Let's suppose कि आप you must have also studied this thing as well. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपकी जो like charges होती हैं, like charges always repel each other. So they are going to repel each other if they are placed in electric field of each other. But if they are very far apart, if they are if they are very far apart, then there won't be any force experienced between these two. So this depend upon, so this force experience basically depend on this electric field कि electric field में आपने वो चार्ज को रखा है या नहीं रखा. अगर आप electric field में रखेंगे तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, अगर electric field में नहीं रखेंगे तो चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा. So this is what electric field is. Now similarly the topic closely related to electric field is your electric field lines. Now what are electric field lines? Electric field lines are the lines that are drawn to represent the force
experience by a unit positive charge when placed in an electric field. ठीक है, so whenever we place a unit positive charge in an electric field, that unit positive charge is going to experience a force, and because of experiencing that force, that unit positive charge is going to move in any particular direction. So in whatever direction it will move, whatever path it will take, उसका जो path होगा, that path is represented by lines, and those lines are called your electric field lines. So ये जो आपका, that is your electric field lines. Usually if we have a positive charge, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है. क्यों होती है? क्योंकि इसमें द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, आपने याद रखना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो अगर इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज और अगर आप उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसके जो मैग्नीट्यूड है वो आपका यूनिट ही है, जो कि 1 यूनिट है. Whose charge is 1 unit, then what will happen, that unit positive charge, since it's very small charge, so it will experience a force because of its placement in the electric field of another charge, so it will move. Now since I've placed it in positive in electric field of a positive charge, so they will basically repel each other. So because of this repelling force, what will happen, this positive charge, this positive unit charge will move outwards. So this means that the electric field lines in case of a positive charge are directed outwards. यानी अगर आपकी जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है फ्रॉम दैट चार्ज, यानी उस चार्ज की सरफेस से निकल रही होती है, एंड दे आर स्प्रेडिंग आउट इनटू द एनवायरनमेंट, इनटू द एटमॉस्फेयर, into its surroundings. So that is the direction of unit positive, that is the direction of electric field line in case of a positive charge. If we have a negative charge and if I place a unit positive charge in electric field of a negative charge, then what will happen is these are opposite charges, so they will attract each other. This positively charged unit, this unit positive charge will experience a force of attraction towards the negative charge in which magnetic field I have placed this positive charge. Then what will happen? This positive charge will be attracted toward the negative charge and it will move towards the negative charge. So the path represented by this unit positive charge when placed in the electric field of a negative charge will represent the electric field lines of a negative charge. So electric field lines of negative charge जो आपकी होती है, that is directed towards the charge, वो charge की तरफ होती है. They are in a straight line, they are perpendicularly out of the surface of that charge, but they are in case of a negative charge they are pointing inward towards the negative charge, and in case of a positive charge they are pointed outward from the charge. Now this electric field is stronger nearer the charge. आप इलेक्ट्रिक चार्ज जितना भी चार्ज के करीब होंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्योंकि अगर आप चार्ज के करीब आएंगे, इफ़ यू आर नियर द चार्ज, देन नियर द चार्ज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लेसर. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी करीब होंगी जितनी कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में करीब होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी ज़्यादा कम होगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी. सो नॉर्मली नियर अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी होती हैं वो एक दूसरे के करीब होती हैं. सो नियर अ चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से अवे मूव कर रही होती हैं. दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से यू कैन सजेस्ट दैट अवे फ्रॉम अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी होती हैं
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होती है वो आपकी वीक होती है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वीक है. तो इफ़ यू आर हैविंग इफ़ यू आर जस्ट शोन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो है वो करीब होंगी, क्लोज होंगी, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी जो है दे आर फर्दर अपार्ट, तो वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी अ बिट वीकर. तो आपकी जो है वो थोड़ी सी वीक होती है. Okay, now let's see in this diagram as well. Okay, in this diagram as well, as you can see that there are two positive charges. These positive charges are going to repel each other. Two negative charges, they are going to attract, so they are also going to repel each other. One positive charge and one negative charge, they are going to attract each other. Now this is the electric field lines of a positive charge. Okay, in case of positive charge, you can see that this is the positive charge and electric field lines are vertically outward from the surface. इसकी जो surface से है वो बिल्कुल out जा रहे हैं, and all these electric field lines are in all direction, हर तरफ होंगी, and they will be perpendicular to the surface of this charge. इस charge के surface के perpendicular होगी. So this is your electric field line of a positive charge. In case of a negative charge, the shape is same, but what is the difference? The difference is the direction of the arrows. Now the direction of arrows in case of a negative charge are towards the negative charge. Why it is towards the negative charge? And इसका reason मैंने आपको बता दिया कि if I place a positive charge in this electric field in case of a negative charge, it will move towards the negative charge. And if I place a unit positive charge in the electric field of a positive charge, it will move away from the positive charge. So ये जो towards charge move कर रही है और away charge आपकी positive charge move कर रही है, इसकी मूवमेंट से आप आइडिया लगाते हैं कि आपकी जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है. पॉजिटिव केस में इट्स आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव केस में इट इज इनवर्ड टू द चार्ज. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ टू individual positive charges which are separately placed. But if these two charges are placed close together, ठीक है, as shown in these two diagrams, if the two opposite charges like this in this diagram, if a positive charge and a negative charge are placed close together, then the shape of their electric field lines will be like this. They will the electric field line will be in this shape. This is the same shape which in the magnets have. जो आपके magnets होते हैं उनकी जो shape होती है, इसकी भी जो shape है वो भी आपकी same है बिल्कुल भी. So this is this is how a unit positive charge, if we have to put different charges, positive and negative charges, so they will be having their electric field lines. The direction, you can easily see that the direction of charge, the direction of electric field lines in this situation is from positive charge towards the negative charge. Electric field lines are coming out from the positive charge and they are going into the negative charge. Positive charge से वो बाहर निकल रही हैं और negative charge की तरफ वो जा रही हैं. So this is how electric field lines are represented. In case of two same charges, जैसे इस सिचुएशन में मैंने शो की हुई है, देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेस. जी, तो ये पीछे वाला डायग्राम वापस समझा दें जो आपने भी समझाया था रिसेंटली. Recently, okay, we have two charges here, positive charge and a negative charge. When they are placed close together, then what will happen? Their electric field lines will interfere with each other. They have separate electric field lines like this, separately ऐसे हैं, but when they are placed close together, तो दोनों को एक दूसरे के करीब place करें, their electric field line will be influenced by each other, and their electric field line will have this shape. Shape उसकी ये होगी. The thing that you have to remember is that since the direction of electric field lines in positive charge is outward, तो positive charge से जो direction है वो outward है, negative charge से direction is inward, so they will be moving out of the positive charge and they will be moving into the negative charge. तो electric field lines जो आपकी हैं उनकी जो direction है वो direction आपकी positive से out होती है और negative जो आपकी है उससे in हो रही होती है. So in case of two same opposite charges, electric field line की shape ये हो जाती है. You just have to remember this shape कि आपने ये जो shape है इसको आपने सिर्फ याद रखना है. नेक्स्ट,
लेट्स मूव ऑन टू सेम चार्जेस। अगर आपके पास दो सेम चार्जेस हैं, जैसे इन दिस सिचुएशन में आई हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, सो सिंस पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं दे रिपेल ईच अदर, सो इन दिस सिचुएशन एज वेल इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इन्फ्लुएंस ईच अदर, and because of their influence, because of the force they exert on each other, what will happen, the electric field lines will be having this shape. One thing that you have to remember, that electric field lines will never intersect each other. Electric field lines जो आपकी होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे. What they will do, they will compress, they will change their shape, but they will never intersect each other. So the same thing happen in this situation as well. When these two positive charges are placed close together, so they will exert force on each other, and because of the force exerted on each other, their electric field lines will be in this shape. इनकी शेप है वो इस तरीके से हो जाएगी. Now in between these two electric field lines, इन दोनों electric field lines के between में बिल्कुल सेंटर में you will be having a no field zone, यानी कि आपको सेंटर में जो एरिया है, that central area will be called your no field zone. वो एरिया आपका no field zone कहलाता है. ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड योर नो फील्ड जोन, क्योंकि इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्लेस. तो अगर आप इस जगह पे कोई भी चार्ज प्लेस करोगे, दैट चार्ज विल नॉट मूव एनीवेयर. अगर आप पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वो यहीं पे पड़ा रहेगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो वो भी यहीं पे पड़ा रहेगा. इट विल नाइदर मूव टूवर्ड्स राइट साइड और टूवर्ड्स द नेक्स्ट राइट साइड, यानी कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे वो ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, इट विल स्टे वेयर इट इज़. तो ये जो आपका फिनोमेना है, ये जो आपका रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड योर नो फील्ड जोन. इसको जो आप नो फील्ड जोन कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट द न्यूट्रल जोन एज वेल. तो इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस में, द डायरेक्शन इज आउटवर्ड, डायरेक्शन जो आपकी है वो बाहर की तरफ है. लेकिन इन केस ऑफ a negative charge, shape stays the same, shape आपकी जो वो यही होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, नाउ इट विल बी इनवर्स. अब डायरेक्शन जो आपकी है वो अंदर की तरफ हो जाएगी. सिर्फ एरोज जो आपके वो आप इंस्टेड ऑफ एरोज पॉइंटिंग हियर, इंस्टेड ऑफ एरोज हियर, आप जो है आप यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये आप जब एरोज यहाँ पे मार्क करेंगे तो दिस शोज दैट दिस इज योर नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ टू सिमिलर चार्जेस which are placed close together. So ये आपके यहाँ वो चार डायग्राम्स हैं. ये डायग्राम्स आपकी इंपॉर्टेंट है. these डायग्राम्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, दैट यू हैव टू ड्रॉ these डायग्राम्स. तो ये डायग्राम आपने देखनी है कि अगर आपकी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उनकी जो है वो शेप कैसी होगी, और अगर अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उनकी शेप कैसी होगी. तो ये दोनों की जो शेप्स है और उनकी जो एरोज हैं, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाई यू, और ये आपने एरोज हैं उनके याद रखने हैं. Yes, if you have any question you can ask me now regarding these. सर इस डायग्राम में ये सिंपल है ना कि अगर ऑपोजिट साइंस होंगे तो अट्रैक्ट होंगी, और अगर दोनों सेम साइंस होंगे तो फिर रिपेल होंगी. जो सेकंड डायग्राम वो रिपेल क्यों हो रही होती है? रिपेल इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं. उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, दे आर पुशिंग ईच अदर अवे. सो इफ दे आर पुशिंग ईच अदर अवे, सो दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड एंड दे विल बी रिपेल्ड. सर डायग्राम ए और बी में तो एक ही चार्ज है. नहीं, एक ये जो पहला वाला चार्ज है ये पॉजिटिव है, थोड़ा सा मे बी श्योर मिसप्रिंट हो रहा है, आपको नजर से नहीं आ रहा. और जो दूसरा आपका चार्ज है दैट इज योर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है. सर तो वो खाली पॉजिटिव है, वो तो उसके पास कोई दूसरा चार्ज तो है नहीं. तो दूसरा चार्ज हमने रखा, और रखने के बाद क्या किया, हमने यूनिट पॉइंट चार्ज रखा, और वो यूनिट पॉइंट चार्ज रखने के बाद हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाहर की तरफ मूव करे, तो हमने इसके जो है ना बाहर की तरफ एरो ड्रॉ कर दिया. पता चल गया हमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है. लेकिन जो हमारी नेगेटिव था, नेगेटिव में हमने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद हमने देख लिया कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टूवर्ड्स द चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमने वो ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ करने के बाद फाइनल डायग्राम को बता रहा हूँ कि फाइनल जो है वो उनका ये होगा. अच्छा, इसमें वन मोर थिंग दैट आई हैव टू ऐड इन दिस लेक्चर, कि अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, देन व्हाट विल हैपन टू दिस पॉजिटिव चार्ज. दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव
लाइक दिस, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली अगर मैं यही पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे रखता हूँ किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट्स व्हेन आई हैव प्लेस्ड इट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, आई प्लेस दिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट इट विल डू, इट विल टेक दिस पाथ, ठीक है, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके यहाँ ड्रॉ की हुई है, इट विल टेक दिस पाथ एंड इट विल मूव टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज। यानी अगर आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा ऐसे नहीं आएगा, इट विल टेक द पाथ फॉलोड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रास्ते से आ रही है वो इस पाथ से फ्लो करते हुए जो है ना इट विल मूव टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने ज़हन में रखनी है दैट कि फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो वो तो आपका बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी चार्ज रखेंगे यहाँ पे इट विल टेक यू नो, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ड्रॉ की हुई है, इट विल टेक दैट पाथ, इट विल नॉट डायरेक्टली स्ट्रेटली यू नो स्ट्रेट बिल्कुल मूव नहीं करेगा, बट इट विल टेक दिस पाथ, जो भी आपका ये पाथ है इस पाथ के ऊपर जो है वो आपका ये फ्लो करेगा, मूव करेगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? Okay, so let's move on to the next topic. अच्छा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, I'll be moving back. ओके, I'll be back. Now अब क्या करना है हमने, now we will be studying the next topic. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कि हम स्टडी करेंगे, कुछ जो है इसमें आप पढ़ भी चुके हैं। तो एक जो आपका होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट फ्लू ऐश रिमूवल। ये जो हमारा है फ्लू ऐश रिमूवल भी कहलाता है। सेकेंड जो हम इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन, सॉरी, सेकेंड एप्लीकेशन हम इसकी पढ़ेंगे दैट विल बी योर स्प्रे पेंटिंग, ठीक है। आपकी जो स्प्रे पेंटिंग होती है उसमें भी जो है वो आपका यही होता है। थर्ड जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर वैंडीग्राफ जनरेटर। वैंडीग्राफ जो आपका जनरेटर होता है उसमें भी जो आपके यही एप्लीकेशन आपको जो वो यूज़ हो रही होती है। और फोर्थ जो हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे दैट विल बी योर फोटोकॉपियर, ठीक है। अच्छा, फोटोकॉपियर और यू कैन आल्सो कॉल इट लेज़र प्रिंटर एज वेल, ठीक है। फोटोकॉपियर और जो लेज़र प्रिंटर आपका होता है दे वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, इन दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका सेम है। सो दीज आर द फोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन आवर डेली लाइफ, जहाँ पे कि हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फिनोमेना अभी तक आपने पढ़ा है इस पूरे के पूरे फिनोमेना को जो है हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर द फोर एप्लीकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट आउट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। Okay, now what is your electrostatic precipitator? Any idea? Hello? Okay, नहीं आता। Okay, so what is an electrostatic precipitator? Basically, electrostatic precipitator is a protective device. ये हमारी एक डिवाइस होती है दैट इज़ फिक्स्ड इन चिमनीज, जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कोल पावर कोई आपका लेट्स सपोज इफ यू हैव अ कोल पावर प्लांट, या कहीं आपका बॉयलर है जहाँ पे आप जो कोयला है उसको जला रहे हैं, या आप किसी और चीज़ को मतलब कि आप बर्न कर रहे हैं और उसको बर्न करने से आप हीट एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। तो आप जब हीट एनर्जी गेन करते हैं उसमें तो जो भी आपकी स्मोक बनती है
उस स्मोक को चिमनीज के जरिए जो है वो वहाँ से एग्जिट कर देते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में हम जो है वो फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यूजुअली व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो आपका है that is basically a device that is fixed in the chimneys. Now what is the purpose of this electrostatic precipitator? The purpose of this electrostatic precipitator is to remove harmful particles from that smoke. आपकी जो स्मोक बर्न, आप जब कोयले को बर्न करते हैं उसमें जब वो आपकी कोयला राइज करता है तो उसमें आपके जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न कार्बन अगर आपका कोई बीच में रह गया है या उसके अलावा कोई और अदर आपका हार्मफुल पार्टिकल है, सल्फर है, फॉस्फोरस है या कोई और लेड आपका है, कोई ऐसा हार्मफुल पार्टिकल है जो कि जब एटमॉस्फेयर में जाएगा then it can cause air pollution or it can cause any type of pollution as well. So what we do, we use electroprecipitator. This electrostatic precipitator will stop these harmful particles from going into the atmosphere. यानी हवा में जाने से, एटमॉस्फेयर में जाने से इन हार्मफुल पार्टिकल्स को जो है वो ये स्टॉप कर लेगा. सो व्हेन दीज हार्मफुल पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू मूव इनटू द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे देन व्हाट विल हैपन, आपको जो एटमॉस्फेयर है इट विल बी क्लीन. तो यूजुअली यू मस्ट हैव सीन, हमारे पाकिस्तान में तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी फैक्ट्री की चिमनी देख लो वहाँ से आपको जो है वो काला धुआं जो है वो निकलता हुआ नज़र आएगा. लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप देखें या अगर आप टीवी पे या किसी जगह पे अगर आप पावर प्लांट्स वगैरह देखें तो उनकी चिमनी से जो है वाइट कलर का जो आपका मन यूजली जो है वो स्मोक निकल रही होती है, धुआं निकल रहा होता है. ये जो वाइट कलर की आपकी स्मोक होती है दैट इज़ योर प्रोसेस्ड स्मोक, ये आपकी प्रोसेस स्मोक होती है. इस स्मोक में से जितने भी हार्मफुल पार्टिकल होते हैं वो हार्मफुल पार्टिकल जो है उनको निकाल लिया जाता है. और उन हार्मफुल पार्टिकल को वहाँ से निकालने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिसाइकल उन हार्मफुल पार्टिकल जो है हम या तो अगर तो वो रिसाइकल हो सकते हैं हम उनको रिसाइकल करते हैं. बट इफ़ दे कांट बी रिसाइकल देन व्हाट वी डू, वी सिंपली क्या करते हैं, हम उन पार्टिकल्स को जो है वो प्रॉपरली इस तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर जो है उस एटमॉस्फेयर को जो है वो इन्फ्लुएंस ना करें, एटमॉस्फेयर को जो है वो ख़राब ना करें. Okay, if you have any question, you can ask me right now. Okay, so let me share with you the diagram of electrostatic precipitator. सर ये आप डायग्राम यूट्यूब पे सॉरी ये जो क्लास है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आज की? हाँ सब होगा, टेंशन ना लो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी. अच्छा, बेसिकली प्रेसिपिटेटर जो आपके होते हैं दे आर ऑफ नंबर ऑफ शेप्स, वो आपके जो है नंबर ऑफ शेप्स में आते हैं. और लेकिन सबका जो पर्पस होता है, सबका पर्पस आपका सेम होता है, ठीक है. ऑल ऑफ देम हैव द सेम पर्पस, ठीक है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस डायग्राम, और इस डायग्राम को शेयर करने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट हाउ इट वर्क्स. Okay, so where are we? Stop sharing. Present now. किधर गई? ओके, सो कैन यू सी द डायग्राम बेटा? शेयर हुई आपसे? नहीं हुई? नहीं हुई? No, sir. ओके, अभी आइए. ओके, कैन यू सी द डायग्राम जी सर आ गई. ओके. अच्छा, नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज फिक्स्ड इन द चिमनी. तो आपको देखिए चिमनी में आपका फिक्स हो रहा होता है. इसमें व्हाट वी हैव, ये आपका सेंटर में जो है आपका देखें एक नेगेटिवली चार्ज वायर होती है, ठीक है. यू कैन से नेगेटिव चार्ज आपकी जो मेटल ग्रिड होता है, और ऊपर आपके ये जो दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है. ये जो आपकी दो प्लेट्स लगी हुई हैं ऊपर
जो कि आपकी वर्टिकल प्लेट्स हैं, दीज वर्टिकल प्लेट्स आर योर पॉजिटिवली चार्ज। तो नॉर्मली आपके जो स्मोक पार्टिकल होता है, जो भी आपकी वेस्ट गैसेज होती हैं containing smoke particles that rises up this chimney, वो चिमनी में राइज करता है। सो व्हेन इट पासेस थ्रू दिस ग्रिड, ये जो आपकी चार्ज नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड आपकी, व्हेन इट पासेस थ्रू दिस नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड, देन व्हाट विल हैपन, दोज उस स्मोक में आपको जो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल हैं, ऑल दोज हार्मफुल पार्टिकल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। सिंस ये आपका जो ग्रिड है, ये ग्रिड आपका नेगेटिवली चार्ज है, सो दोज स्मोक पार्टिकल विल टच दिस ग्रिड, और जब उस ग्रिड को टच करेंगे देन व्हाट विल हैपन, जो ग्रिड आपकी है ये ग्रिड इट विल गिव दोज चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, तो उस जो भी आपका सॉरी स्मोक पार्टिकल होंगे उनको नेगेटिव चार्ज दे देगा। सो दोज स्मोक पार्टिकल विल गेन दैट नेगेटिव चार्ज एंड दे विल बिकम नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्मोक पार्टिकल जब आपके ऊपर राइज करेंगे, देन दे विल बी अट्रैक्टेड बाय these two पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। तो ऊपर जो आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स लगी हुई हैं, ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगी, उस नेगेटिवली चार्ज हार्मफुल पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। So those negatively charged harmful particle will then attract and they will be deposited on this positively charged plates। इन positively charged collecting plates पर वो आपके जमा हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, वो उन पे चार्जेस जमा तो हो रहे हैं, दे आर कलेक्टिंग दोज चार्जेस, बट उसका अगर आप रिमूव नहीं करेंगे देन दे विल फॉर्म अ वेरी थिक लेयर। तो इसको थिक लेयर से स्टॉप करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि हमारी ये जो पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, दीज कलेक्टिंग प्लेट्स आर कंटिन्यूसली बीइंग शेकन, इनको हम कंटिन्यूसली जो है वो मैकेनिकली शेक कर रहे होते हैं। सो व्हेन दीज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स आर शेकिंग, देन व्हाट विल हैपन, जो भी इस पे पार्टिकल इसके ऊपर अटैच हुआ होता है वो पार्टिकल से, क्योंकि आगे जब पार्टिकल से जब चिपक गया तो अपनी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सो द चार्जेस विल डिफ्यूज, चार्जेस आपकी खत्म हो जाएंगे, तो दे विल बी अनचार्ज। तो जब ये अनचार्ज होंगे, सो व्हाट विल हैपन, दोज पार्टिकल विल देन कीप ऑन फॉलिंग डाउनवर्ड्स, और ये जब नीचे फॉल करेंगे देन आफ्टर दे विल बी ये आपके सेंटर में जो है वो आपका एक पर्टिकुलर ऐसी एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे जो भी आपके पार्टिकल नीचे फॉल कर रहे हैं, दोज पार्टिकल गो टू दिस एरिया, और फिर वो जो है वो नीचे से जो है हम इसको जो है उन पार्टिकल्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, एंड आफ्टर कलेक्टिंग दोज पार्टिकल कैन बी डिकम्पोज, आप जो है वो उसको इजीली जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं। यू कैन आइदर रिसाइकल देम, अगर वो रिसाइकेबल हैं तो आप उनको जो है वो रिसाइकल करते हैं कि और कोई चीज़ बनाते हैं, अगर रिसाइकल नहीं हो सकते देन यू विल सिंपली प्रॉपर्ली डिस्पोज देम ऑफ। सो दिस इज व्हाट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। सर ये जो पॉजिटिवली चार्ज पे गए ये स्मोक पार्टिकल्स, तो वो डिफ्यूज कैसे हो गए? क्योंकि जो आपकी प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो पार्टिकल है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सो ये जब उसको टच करेगा तो ये अपनी नेगेटिव चार्ज लूज कर जाएगा, तो अपनी नेगेटिव चार्ज उसको दे देगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया था क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम है आपके पास, आपको जो मेटल है, एलिमेंट है, एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो भी आपका पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो जब इस प्लेट को हिट करेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, और वो लूज किसको देगा, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इस तरीके से फिर आपको क्या होता है, वो जो पॉजिटिव चार्ज आपकी होती है प्लेट में वो कम हो जाती है, और इसके जो है वो नेगेटिव आपकी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका जब कंटिन्यूसली चलता रहता है, दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूसली बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इसको हम कंटिन्यूसली जो है पॉजिटिव चार्ज करते रहते हैं ताकि जो भी चार्जेस आपके डिफ्यूज हुए हैं, जितना भी पॉजिटिव चार्ज आपका कम हुआ है उसको फिर दोबारा से हम ओवरकम कर सकें। ठीक है उमर, एनी मोर क्वेश्चंस? तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है पॉजिटिवली चार्ज को तो वो खुद वापस नीचे आ जाता है, खुद न्यूट्रल हो गया और फिर नीचे दोबारा गिर जाता है। जब वो नीचे गिरते हैं तो आपके देखें यहाँ पे एक जो है वो एज सा बना हुआ है, तो वो नीचे जब गिरता है तो वापस वो चिमनी में नहीं गिरता बल्कि वो इस एज प्लेट के बिल्कुल साथ गिरता है, और वो जब साथ गिरता है तो उसको फिर अलग से जो है वो आपका पार्टिकल जो है उसको फिर हम जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं। सही है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो ग्रिड से पहले उसका कोई चार्ज नहीं होता, पार्टिकल स्मोक पार्टिकल कोई चार्ज नहीं होता, स्मोक पार्टिकल आपका न्यूट्रल होता है, ग्रिड से गुजरता है तो ग्रिड जो आपकी है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो ग्रिड से गुजरने के बाद नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो भी आपकी मतलब ऐसी स्मोक जिसमें पार्टिकल नहीं होते, अगर पार्टिकल नहीं होते वो आपकी सीधी निकल जाती है। पार्टिकल्स को आप रोक लेते हैं लेकिन आपकी स्मोक होती है, गैसेज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकल जाती है जी। सर ये जो वापस नीचे आ रहे हैं, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इस पे कौन सी चार्ज है? ये न्यूट्रल है,
ये न्यूट्रल के नीचे गिर रहे हैं। तो सर फायदा क्या हुआ सर ये प्रोसेस करने फायदा का, ये हुआ जब ना कि ऊपर नीचे से भी हवा में नहीं न्यूट्रल आ रहे गए, हैं ऊपर ये से। पार्टिकल ऊपर हवा में नहीं गए। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, एनी मोर और सर रिसाइकल भी हो गए। और रिसाइकल भी हो गए, ये इसका फायदा हुआ। यस ठीक है, सो आई बी अपलोडिंग दिस थिंग। ये जो मैंने अभी आज चीज़ें आपको बताई हैं ये मैं कोशिश करता हूँ कि अपलोड कर दूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। और जिस बच्चों का कोई स्टार्टिंग का लेक्चर मिस हो गया दे कैन गो थ्रू द लेक्चर, वो दोबारा से वो यूट्यूब पे लेक्चर से गो थ्रू जा सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी समझ में कोई चीज़ नहीं आई है दे हैव टू गो थ्रू अगेन, वो दोबारा से इस लेक्चर को सुन सकते हैं ऑन यूट्यूब। ओके, अल्लाह हाफिज़।